So what I am telling is that sampling an analog signal with frequency f by choosing a sampling frequency fs such that sampling an analog signal with frequency f by choosing sampling frequency fs such that fs by 2 is greater than f will not result in alias. Okay, but sampling frequency is selected such that fs by 2 is less than f, that the frequency above fs by 2 will have alias with the frequency below fs by 2. Understand? If I select such sampling frequency, which is conditioned like this. Understand? This is condition notice that fs by 2 is such that it is lesser than f. Then what will happen? Then the frequency above fs by 2 will have alias with frequency below fs by 2. Okay, understand what I'm telling? Yes, sir. Okay. तो ये हो गया प्रॉब्लम कि fs by 2 और मतलब सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ऐसा हम लोगों को सिलेक्ट करना है ताकि एलाइज ना हो। तो मतलब क्या हुआ, fs by 2 इज द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। fs by 2 की ज्यादा होने से आपका एलाइजिंग नहीं होगा और fs by 2 से कम होने से आपका एलाइजिंग हो जाएगा। तो fs by 2 इज द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम लोग
fs/2 को कहते हैं हम लोग फोल्डिंग फ्रीक्वेंसी. That's why fs/2 is called folding frequency. So this is called folding frequency because everything is dependent on fs/2. If the frequency is such that sampling frequency is such that it is greater than f, then it will not result in alias. If it is lesser than f, then frequency above fs/2 will have the alias with the frequency below fs/2. So fs/2 is the reflection point according to the fs/2, or fs/2 frequency is the determination of aliasing or non-aliasing. So that's why fs/2 is called our folding frequency. Clear everybody? सर अगर एफ एस को जो लिखेंगे, अगर जैसे होता है फॉर्मूला होता है ना सर, एफ एस बराबर 2 FM एलाइजिंग को रोकने के लिए सर. हाँ, वो तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए होगा, वो मैं बता. तो सर उसमें मतलब अगर एफ एस की जगह 2 FM अगर ले लेंगे तो सर वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बन जाएगा ना, कट करके fs/2 करके. हेलो, हाँ आरक भाई बोलो. हाँ क्या सर, बोला? यहाँ क्या बोला? सुना नहीं बोल. बोल रहे हैं सर जैसे एफ एस बराबर 2 FM होता है, तो एफ एस की जगह अगर 2 FM लिख देंगे तो सर वो तो कट करके 2 FM हो जाएगा ना वैसे में. वो एफएस मतलब ग्रेटर देन fs/2 क्या हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ आपको. वो अभी आएगा. वो डिस्क्रीट टाइम साइनोसॉइडल के लिए होगा. ठीक है, मैं बता रहा हूँ. ठीक है, यस सर, यस. हाँ अभी वेट करो, अभी उसके बारे में बात करें. तो अगर ये तो एनालॉग के बारे में हो गया, इसे फोल्डिंग फ्रीक्वेंसी कहते हैं. इतना देर तक हो गया. आप देखो, अगर डिस्क्रीट टाइम साइनोसॉइडल लेंगे, डिस्क्रीट टाइम साइनोसॉइडल लेंगे तो डिस्क्रीट टाइम साइनोसॉइडल को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर ये साइन वेव है तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे. ए साइन 2 पाई f0 प्लस 2 पाई k इंटू n. ये अगर मेरा सिग्नल है तो ये सिग्नल एलाइज होगा फॉर इंटीजर वैल्यू ऑफ k. It is also observed that a sinusoidal signal with frequency f1 will be alias an alias of sinusoidal signal with frequency f2 if it is sampled at a frequency fs is such that
fs is equal to f1 minus f. That means if the sampling frequency is any multiple of f1 minus f2, then the signal with frequency f2 will be an alias of the signal with the frequency f. अगर इसको जनरलाइज करें तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ऐसा भी हो डिजिटल साइनसॉइडल के लिए जे fs is equal to k of f1 minus f2, जहां पर k एक इंटीजर है, k का वैल्यू 1, 2, 3 डॉट ऐसा इंटीजर है. The signal with frequency f2 will be alias with f1. ये हमने देखा. तो फिर हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को कैसे सैंपल करेंगे? मतलब कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को ना मैंने मान लिया fs/2 इज ग्रेटर देन f कर हम लोगों को ले लेना है, पर डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल को भी तो आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो हम लोग सोचते हैं, हम लोग कैलकुलेशन करके देखा है, एक आदमी ने कैलकुलेशन करके देखा है कि हमने अगर f max अगर लेते हैं maximum frequency of an analog signal, if f max is the maximum frequency of an analog signal, f max हम लोग लेते हैं maximum frequency of an analog signal that can be uniquely represented as discrete time signal when sampled at the frequency fs. Okay, तो तब हम लोग f max लेते हैं maximum frequency को. तो अगर यूनिकली रिप्रेजेंट करना है एक एनालॉग सिग्नल को एज अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल विद अ सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी fs, तो मतलब मेरा क्या फॉर्मूला हो गया? मेरा फॉर्मूला हो गया, अपना फॉर्मूला हो गया f max इक्वल्स टू fs/2. तो उसको हम लोग लिख सकते हैं fs इक्वल्स टू 2 into f max. इस इक्वेशन को लिख सकते हैं. तो इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन अगर अपना 2 नंबर इक्वेशन हो, ये मेरा अगर 3 नंबर इक्वेशन हो, तो 3 नंबर इक्वेशन हम लोग को एक चॉइस दे रहा है. क्या चॉइस दे रहा है? कि सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए. तो फ्रॉम इक्वेशन 3 वी कैन से that a unique representation of the analog signal with maximum frequency fx, the sampling frequency should be greater than 2 of fx. That is, to avoid aliasing, we have to write fs is such that it is greater than equals to 2 of f max. तो अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कोई एनालॉग सिग्नल का हो, अगर उसको पता चल गया मुझे कि एक एनालॉग सिग्नल का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है, अगर हम उसको निकाल सके, तो उसको हम अगर ये सूत्र में ला सके कि सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी ऐसा होना चाहिए कि वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 ऑफ f max होगा. मतलब इक्वल्स टू भी हो सकता है, पर ग्रेटर देन होने से अच्छा होगा, तो उसका दुगुन होगा. तो हम लोगों का ये अलाइजिंग का इफेक्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. पहले से ही हम लोग यूनिकली एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को रिप्रेजेंट करेंगे एनालॉग सिग्नल को सैंपलिंग करने.
सर इसमें इक्वल टू ले सकते हैं सर, जैसे कि उसमें तो पिछला वाला में जो पेज में यही बताए यही यही मैं बता रहा हूं कि अगर हम लोग ऐसा सिग्नल लिए जो है ऐसा, जैसा कि मैंने ग्रेटर देन इक्वल्स टू बोला था, तो अगर मैं ऐसा सिग्नल लिया जो है fs is such that it is equals to 2 of f max, ऐसे अगर हुआ तो ये सैंपलिंग रेट को हम लोग बोलेंगे नाइक्विस्ट रेट। तो हम इस सैंपलिंग रेट को बोलेंगे नाइक्विस्ट रेट। क्या बोलेंगे? नाइक्विस्ट रेट। NYQUIST, नाइक्विस्ट रेट। जो सैंपलिंग रेट में fs सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी such that it is equals to 2 of f max, that is the maximum frequency of the analog signal. That particular sampling rate or sampling frequency is called Nyquist rate. अब Q इसको Nyquist rate बोलते हैं। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है fs equals to 2 f max? क्योंकि हम लोग अगर देखेंगे, हम लोग ऑब्जर्व किएंगे, नाइक्विस्ट ने ऑब्जर्व किया था, क्या ऑब्जर्व किया था कि अगर नॉन शिफ्टेड साइनसॉइडल सिग्नल, नॉन शिफ्टेड साइनसॉइडल मतलब अगर मैंने शिफ्टिंग ऑपरेशन नहीं किया है, तुम लोग एनालॉग सिग्नल सिस्टम पढ़ चुके हो, तो तुम लोग जानते हो कि हम लोग सिग्नल के ऊपर शिफ्टिंग ऑपरेशन करते हैं। जैसे कि अगर x ऑफ t मेरा एक सिग्नल है, तो x ऑफ t -1 मतलब -1 सेकेंड से वो शुरू होगा, 1 यूनिट्स 1 सेकेंड या 1 यूनिट से वो शुरू होगा, तो ये शिफ्टिंग है। ऐसे t+1 भी कर सकते हैं, मतलब बाएं तरफ शिफ्टिंग होगा, कभी दाएं तरफ शिफ्टिंग होगा, तो ये सब बारे में तुमने सिग्नल सिस्टम में पढ़े। तो मैं बोल रहा हूं कि एक साइनोसाइडल सिग्नल है जो नॉन शिफ्टेड सिग्नल, नॉन शिफ्टेड सिग्नल, एक मिनट जस्ट अ मिनट, बिकॉज आई हैव अ फोन कॉल, जस्ट अ मिनट, सॉरी फॉर दैट। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, सॉरी फॉर द वेटिंग, वेरी सॉरी। सो मैं क्या बोल रहा था कि अगर ऑब्जर्व करेंगे कि अगर एक साइनसॉइडल सिग्नल नॉन शिफ्टेड रहेगा, तो उसको अगर इसी नाइक्विस्ट रेट से, ये जो नाइक्विस्ट रेट है, दैट मींस fs इज इक्वल टू 2 ऑफ f max, अगर इस रेट से अगर कोई नॉन शिफ्टेड साइनसॉइडल सिग्नल, नॉन शिफ्टेड क्या है, क्या बोल रहे हैं, नॉन शिफ्टेड साइनसॉइड, अगर नॉन शिफ्टेड साइनसॉइडल सिग्नल को अगर इस रेट से सैंपल करेंगे, नाइक्विस्ट रेट से सैंपल करेंगे, तो वो क्या दिखाएगा, वो जीरो सैंपल सीक्वेंस देखेंगे। That means a discrete sequence will all zero. That means xn will be all zero. That is a function of 0, 0, 0, 0. All the sequence of that discrete time signal will be zero.
क्यों होता है? बिकॉज द साइनोसाइडल सिग्नल इज सैंपल्ड एट इट्स जीरो क्रॉसिंग। जीरो क्रॉसिंग क्या है? जीरो क्रॉसिंग हम बाद में बताएंगे कि क्या है जीरो क्रॉसिंग। तो ये जीरो सैंपलिंग ऑफ साइन वेव को अवॉइड करने के लिए द सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन 2 of fmax, where fmax is the maximum frequency of the amplitude. Understand? सर 0 0 कैसे आया नहीं समझे सर, एक्शन समझ अगर नहीं आया। अरे भाई वही तो बोल रहा हूँ कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को एक नॉन शिफ्टेड साइनोसॉइडल सिग्नल को अगर हम लोग सैम्पलिंग करेंगे नाइक्विस्ट रेट से, that will produce zero sample sequence, that is discrete sequence with all zeros. क्योंकि नॉन sinusoidal signal, if it is sample that is zero crossing, we will always get a discrete sequence with all zeros. अब जीरो क्रॉसिंग क्या है ये मैंने बोला जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के बारे में मतलब सीखेंगे, तब हम लोग ये जीरो क्रॉसिंग के बारे में पूछेंगे, मतलब पढ़ेंगे। अभी अगर जीरो क्रॉसिंग बोलने के तो पूरा जीरो क्रॉसिंग में टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए अभी सिर्फ जान लो कि कोई भी साइनोसॉइडल सिग्नल को उसका जीरो क्रॉसिंग वैल्यू में अगर सैंपल किया जाता है तो डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस का सीक्वेंस जो बनता है वो सब जीरो होता है। तो नाइक्विस्ट रेट ऐसा ही एक जीरो क्रॉसिंग वैल्यू है जहां पर कोई एनालॉग साइनोसॉइडल सिग्नल को अगर सैंपलिंग करेंगे तो जो डिस्क्रीट साइनोसॉइडल सिग्नल निकलेंगे उसका सभी सीक्वेंस जीरो जीरो हो जाएगा। इसीलिए हम लोग ये जीरो सैंपलिंग ऑफ साइन वेव, सिर्फ साइन वेव के लिए हम लोग इस जीरो सैंपलिंग ऑफ साइन वेव को अवॉइड करने के लिए सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी ऐसे लेता है कि वो ग्रेटर देन 2 of fmax हो, जहां पर f of max is the maximum frequency of that element. समझ गए? यस सर। Everybody has understand, because this is a very very important part of signal and system or digital signal processing. सैम्पलिंग थ्योरम से क्वेश्चन आएगा, सैम्पलिंग थ्योरम से प्रॉब्लम आएगा। अगर सैम्पलिंग थ्योरम नहीं समझ में पाए तो कुछ देर बाद अलाइजिंग इफेक्ट इन फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम और फ्रीक्वेंसी एनालिसिस ऑफ डिजिटल सिग्नल, वहां पर पूरी तुम लोगों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं बार बार, अगर कहीं पर भी आप लोगों को डाउट है तो अभी बोल दीजिए, क्योंकि अगर मैं ये सर बोल रहे हैं सर, जो एफ एस इक्वल टू F1 माइनस F2 करेंगे तो मतलब वही उसमें भी मतलब एलाइजिंग मतलब हम लोग को दिखेगा सर। हाँ मैं तो बोल रहा हूँ Fs इक्वल्स टू F1 माइनस F2, वो सिर्फ डिस्क्रीट टाइम साइनोसॉइडल कितना होगा वो एनालॉग सिग्नल के लिए होगा। जहाँ अगर देखेंगे F1 F2 दो फ्रीक्वेंसी है और Fs इक्वल टू F1 माइनस F2, दैट मींस any multiple of k if it is there will have the Alice effect, that F2 will be Alice of the F1 signal. So Okay, this is that. So the last conclusion is that a discrete time signal is obtained by sampling, can be reconstructed to an analog signal only when it is sampled without aliasing. अगर aliasing हो गया तो हम लोग डिस्क्रीट टाइम सिग्नल से वापस कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल नहीं बना पाएंगे, मतलब रिकॉन्स्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सिग्नल आइडेंटिकल हो जाएगा। इसलिए आइडेंटिकल सिग्नल को डिफरेंशिएट अगर नहीं कर पाएंगे तो हम लोग फिर से डिस्क्रीट टाइम सिग्नल से एनालॉग सिग्नल नहीं बना पाएंगे। The above concepts of sampling of analog signal, सर एलाइजिंग में मतलब बेसिकली होता क्या है, मतलब सिग्नल का लॉस हो जाता है, मतलब क्या होता है उसमें? aliasing मतलब overlapping. Overlapping means one signal is identical to each another signal. So दोनों सिग्नल अगर एक ही जैसा हो जाएगा
फ्रीक्वेंसी ऑफ एक सिग्नल का f2 है और फ्रीक्वेंसी ऑफ अनदर सिग्नल इज f1 है, तो दोनों सिग्नल देखने में एक ही हो जाता है, तो तुम उसको देखोगे कैसे, उसको आइडेंटिफाई करोगे कैसे? ऐसा तो नहीं है फ्रीक्वेंसी जनरेट होने के बाद दोनों ही अगर देखने में एक ही हो जाता है, दो साइन में अगर देखने में एक ही होता है, तो अगर तुम एक पेपर लेकर ड्रॉ करोगे तो कैसे ड्रॉ करोगे? एक के ऊपर ओके ड्रॉ करना पड़ेगा तुमको, क्योंकि दोनों देखने में आइडेंटिकल है। तो उसको अगर तुम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें तो कोई फ्रीक्वेंसी मिसमैच नहीं है, दोनों फ्रीक्वेंसी सेम हो रहा है, तो अगर आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो उसको रिकॉन्स्ट्रक्ट कैसे करोगे? तो इसको कहते हैं अलायंस, Yes, sir. Yes, overlapping sir. of overlapping of these two signals having the same frequency, that is called aliasing. और यहां पर हम लोग अलाइजिंग इफेक्ट कब बोलते हैं? जब हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट getting the identity of a low frequency component during sampling is called aliasing effect. ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक सैम्पलिंग थ्योरम बना सकते हैं, मतलब एक सैम्पलिंग थ्योरम बोल सकते हैं जिसको, जो थ्योरम बन गया हमारा, वो थ्योरम क्या बन गया? तो हमारा सैम्पलिंग थ्योरम क्या है? सैम्पलिंग थ्योरम, तो ये हमारा थ्योरी से थ्योरम बन गया। That means we will follow always this theorem whenever we will sample an analog continuous time signal to a discrete time signal. So what is the theorem? A band limited signal, you can note it in your copy or you can take the screenshot. Okay, a band limited signal continuous time signal with highest frequency or bandwidth. FM, hertz can be uniquely recovered from its samples provided that the sampling rate Fs is greater than or equal to two of FM samples per second. So this is our sampling theorem.
Okay. Yes, sir. So please take the screenshot or you can learn by heart this thing. This is your sampling theorem. It will come in question what will be the sampling theorem, and you have to write this sampling theorem. Now there is next question that is coming from sampling theorem is some problems, and this is very important problems because every time these problems will come to an example. So I will give you 2 or 3 problems, and I will give you a problem to be solved in the home, and I will see that I have created a Google Classroom. I will give you all the things of the Google Classroom, and I will give you assignment, and you have to submit another 2 problems by helping this problem. So without delay, further delay, let us start one problem. So it is written, consider the analog signals x1t equals to 3 cos 2 pi to 20t, and x3t equals to 3 cos 2 pi 70t. Find a sampling frequency so that 70 Hertz signal is an alias of the 20 Hertz signal. So this is the question. Now how will solve this? So I will take the, it is called find and sampling frequency so that 70 Hertz signal is an alias of 20 Hertz signal. Now, whenever I told you this thing, if Fs equals to F1 minus F2, then I told that F2 will be an alias of F1. F2 will be an alias of F1. Okay, so let us take F1 equals to 70 Hertz and F2 is equal to 720 Hertz. So Fs equals to 70 minus 20. Let us take it. That is 50 Hertz. So I get the sampling frequency. Now, if I sample this frequency, if I use this frequency for sampling, and if I see that the 2 signals are identical, then I can tell for this particular frequency,
sample frequency, the above two signal will be identical. So let us test this. Let us test this. X1n equals to X1t, that is equals to for the period t equals to nt, sampling for the period t equal to nt, that is equals to n by fs. So that is equals to 3 cos 2 pi 20t, where t equals to n by fs, that equals to 3 cos 2 pi 20 into n by 50, that is equals to 3 cos 4 pi by 5 into n. So that is the first signal. Next, for the second signal, x2n, that is equals to x2t. For the time period t equals to nt, that is equals to n by fs. So that is equals to 3 cos 2 pi 70 into n by 50, that is equals to 3 cos 14 pi n, 14 pi by 5 n, that is equals to, that can be writing as 3 cos 2 pi n plus 4 pi by 5 into n, that can be written as 3 cos 4 pi by n and 5 into n. So you can see here clearly this signal is equal to this. So x1n equals to x2n, we can write it. That means they are identical. So x2t is an alias of x1t when sampled at a frequency of 50. Now everybody, this portion, have you understand this portion? 2 pi n by plus 4 pi by 5. How do I do this? This is because for integers value of n, for integer value of n, cos of 2 pi n plus theta equals to cos theta. So I use this formula here to get this, because I have to match this. Understand? Yes, sir. सभी को समझ में आया? इस एक ही आदमी को समझ में आया? यस सर। ज्यादातर कोई बात नहीं कर रहा है, सिर्फ एक दो आदमी आंसर दे रहे हैं और कुछ बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसी ऊपर सर इसमें अगर करेंगे तो 25 हर्ट्ज को नीचे लेना पड़ेगा सर, मतलब अगर पहले उसको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको निकालना पड़ेगा। ये एनालॉग सिग्नल का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं वो भी हम लोग करेंगे नेक्स्ट डे में प्रॉब्लम, कि एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कैसे निकाला जा सकता है जहां पर सैंपलिंग करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर मतलब एफएम अगर निकाल पाएंगे तो ही तो सब कुछ हो जाएगा मैक्स, तो कैसे एक मैक्स निकालते हैं वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना है, क्योंकि और 1 मिनट है, इसीलिए मैं और कुछ नहीं जान